Hello dear students. Today we will discuss about neonatal resuscitation algorithm. In last class we have discussed about the basic principles of the neonatal resuscitation and the TABC of neonatal resuscitation. We can say that neonatal resuscitation is the body of the resuscitation, while the TABC is the soul of the neonatal resuscitation program. Algorithm is the structured way how we will do the steps of the neonatal resuscitation, how we will perform TABC in a structured manner and in a time-bound manner, when which step will be done. And that all will be discussed in neonatal resuscitation algorithm. Why neonatal resuscitation is so much important? Because if done properly, it can prevent the long-term neurological complication of the birth asphyxia. Birth asphyxia usually results in if baby do not die with asphyxia related complication, then surely the brain damage will result in various long-term neurological complications like cerebral palsy or seizures. So, if we perform neonatal resuscitation properly and promptly, then we can prevent death as well as long-term neurological complication. And death prevention of neonatal death uh, is very much the goal to reduce infant mortality rate, because most of the part 70% of the infant mortality rate is due to neonatal mortality rate. And in NMR, neonatal mortality rate, one of the main component is birth asphyxia. So a good neonatal resuscitation can prevent both these death as well as long-term neurological complications. Why we are so much pressing over neonatal resuscitation? Because neonatal resuscitation is very simple, inexpensive. It does not require many sophisticated instrumentation or equipments or medications. It is basically cost-effective, skill-based program. If we are able to train the paramedics as well as medical staff in neonatal resuscitation, we can prevent so many neonatal deaths as well as long-term complication due to birth asphyxia. But what is the basic problem in neonatal resuscitation program? It is basically neonatal resuscitation is often not initiated, and if initiated, maybe incorrect methods are being used. That's why every medical person should be trained or should at least know about the basic steps of the neonatal resuscitation program. The resuscitation is basically time bound, and as such, asphyxia will damage neuronal tissue or brain within very few time period. That's why the first minute of the life is known as golden minute. The golden minute concept have come because if we are able to provide a good resuscitative care or a good care during this first minute of just after birth, we can prevent so many complications. And this particular first minute is very important for the baby, because baby have transition from intrauterine to extrauterine life. It is also a anxious time for parents as well as health care providers. As we have discussed in last lecture, that 90% of the newborns do not require or require very minimal assistance to have transition from intrauterine to extrauterine life, while remaining 10% may require assistance, and most of them will require assistance to begin breathing, while 1% of them will have a requirement of extensive resuscitative measures like positive pressure ventilation or chest compressions. That's why the first golden minute is very important, and it is basically skill based. It does not require any instrumentation equipments. Very much investment are not required. It basically is a skill based program, and if we perform good resuscitative care during this first minute, we can prevent complications of birth asphyxia.
what are the factors which are responsible for successful neonatal resuscitation? These are basically four factors. दे आर एंटिसिपेशन, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर बर्थ एस्फिक्सिया if delivery is high risk labor or high risk pregnancy is there, then we should be prepared, or we should call a skilled person, or we should shift the mother to secondary or tertiary level care where there is a skilled person who is skilled in neonatal resuscitation. तो एंटिसिपेशन करना और रिस्क असेसमेंट करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी शुड बी referred to a tertiary or secondary level center for the delivery. Then when we are anticipating baby with asphyxia, we should be adequately prepared. We should be prepared in each and every delivery, because every delivery can be an emergency. We should be prepared to handle that emergency. Adequate preparation, जो हमने पहले बात करी थी, we should have everything for resuscitation. We should prepare warm linens. Radiant warmer should be put on at least 30 minutes before expected delivery, and we should have all the equipments or skilled persons in the labor room for resuscitation. Then accurate evaluation. Now from here we starts the algorithm that accurate evaluation should be done at birth as well as subsequently. And then prompt initiation. If there is some need of providing some resuscitative care or support, then it should be started promptly. We should not delay the resuscitative steps. That's why within first minute we should be able to provide positive pressure ventilation if required by the newborn. So that's why that is known as golden minute. First golden minute. The golden minute, in golden minute we should be able to start respiration either by stimulation or positive pressure ventilation. And these are adequate preparation. We should have oxygen or laryngoscope with ET tubes, cord clamps, the suction catheter, radiant warmer or suction valve, or pre-warmed linens or ambu bag. Or there are so many lists like medication, epinephrine 1:10,000 previously prepared solution हमारे पास होना चाहिए. एंड बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के लिए सारा इंस्ट्रूमेंटेशन, या इंट्यूबेशन के लिए हमारे पास सक्शन मशीन एंड मिसलेनियस जो अपने उसके लिए रेडिएंट वार्मर है, ग्लव्स हैं. तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड. Then starts resuscitation algorithm. एंड बेसिकली जो है इसमें टाइम बाउंड साइकिल्स होते हैं. तो फर्स्ट मिनट जो हमने पहले बात की, बार बार बात कर रहे हैं, इट इज द फर्स्ट गोल्डन मिनट. तो इसमें ही डिसाइड हो जाता है कि बेबी जो है, इफ द न्यूबॉर्न got a good resuscitative care, if the newborn have required resuscitative care and good resuscitative care had been provided to the newborn, then the prognosis will be very good. तो बेसिकली resuscitation algorithm में है क्या है, टाइम बाउंड cycle of evaluation, decision and action. We will evaluate some things like vitals, respiration or heart rate, and then we will make a decision कि क्या करना है. कि ब्रीथ नहीं कर रहा है बेबी तो what to do, या ब्रीथ कर रहा है तो what to do. तो डिसीजन करेंगे एंड देन एक्शन लेंगे, उस पर एक्शन लेंगे. एंड दिस पर्टिकुलर साइकिल शुड बी कंप्लीटेड विद इन 30 सेकेंड्स. तो फर्स्ट 1 मिनट में हमारे पास 2 साइकिल कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड सेकेंड साइकिल में हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की जरूरत होती है अगर जरूरत है. तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि फर्स्ट 1 मिनट में if baby requires, then positive pressure ventilation or bag and mask ventilation should be started within 1 minute of the labor, or within first minute of the life. इनिशियल असेसमेंट बेसिकली जेस्टेशनल एज हम हिस्ट्री से एज वेल एज न्यूबॉर्न को देख के असेस कर सकते हैं. उसकी ब्रीदिंग
कैसी कर रहा है और मसल टोन क्या है। देन फर्दर जो सेकंड साइकिल ऑनवर्ड्स जो इवैल्यूएशन करते हैं वो रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट पे करते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि वी डू नॉट assess heart rate right just after birth. We assess it in second cycle if baby have not breathed and we have provided initial care to the baby, then only we will assess the heart rate. तो अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम 3 या जो 4 साइकिल हमारे पास रिससिटेशन एल्गोरिदम के आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो दिस इज latest resuscitation algorithm which was updated in 2015 and उसमें जो है इतना पार्ट तो नया है ही कि बर्थ से पहले जो है वी शुड डू एंटीनेटल काउंसलिंग एज वेल एज टीम ब्रीफिंग। टीम पे स्ट्रेस किया है न्यू वाले जो एल्गोरिदम पे है कि वी शुड डू टीम ब्रीफिंग। टीम बनानी है हमने रिससिटेशन टीम, उसमें लीडर जो है चुनना है और उसके बाद टीम ब्रीफिंग होगी कि कौन आदमी क्या काम करेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो कौन प्रेशर वेंटिलेशन देगा, कौन जो इंटूबेट करेगा या कौन सा चेस्ट कंप्रेशन करेगा, मेडिकेशन कौन प्रोवाइड कराएगा। तो टीम बनेगी, टीम ब्रीफिंग होगी, देन इक्विपमेंट चेक करके रखेंगे हम, तब बर्थ होगा। बर्थ के बाद फिर जो है बर्थ के बाद हमने असेस करना है 3 चीज़ें और इनको हम जो स्टेप बाय स्टेप लेंगे कि दिस इज पिंक में जो शो की है इवेल्युएशन है और यहाँ पे हमने डिसीजन लिया कि ये चीज़ क्या है। अगर ये चीज़ें हैं जैसे टर्म जेस्टेशन है, गुड टोन है, ब्रीदिंग है, नहीं है, नो, तो मतलब एक डिसीजन लिया। देन इस डिसीजन के बाद हमने एक्शन लिया कि वी शुड प्रोवाइड वार्मथ और मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर पोजीशन और ये सारी चीज़ें। तो ये फर्स्ट साइकिल है और सेकंड साइकिल, और सेकंड साइकिल का एक्शन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। तो सेकंड साइकिल का एक्शन क्या है? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर पहले ही यस था कि हाँ टर्म जेस्टेशन है, ब्रीथ कर रहा है बेबी, तो कुछ नहीं, उसको रूटीन केयर देना है। और यहाँ पे फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिससिटेटिव स्टेप है, तो फर्स्ट रिससिटेटिव स्टेप जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है वो सेकंड साइकिल के बाद अगर जरूरत पड़ती है। तो अगर जरूरत नहीं पड़ती है प्रिलिमिनरी स्टेप्स के बाद वो ठीक हो जाता है, तो वी गो टुवर्ड्स हियर एंड फ्रॉम हियर टुवर्ड्स हियर। तो सेकंड स्टेप तक जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है उस वो जो है 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा हो जाना चाहिए, जिसको कि हम गोल्डन मिनट की बात करते हैं। और इसके बाद जो है हम बाकी चीज़ों को चेस्ट कंप्रेशन और इनकी बात करते हैं। तो ये सारे जो स्टेप बाय स्टेप है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है बर्थ हुआ है बेबी का, तो क्या क्या इवेल्युएशन करनी है? एक तो टर्म की फुल टर्म है कि नहीं है, ब्रीथ कर रहा है, क्राई कर रहा है, या मसल टोन कैसी है उसकी, लिम्प है बिल्कुल या फ्लेक्सन के पोस्चर में पड़ा हुआ है, तो किस तरह का है मसल टोन, वो 3 चीजें देखनी है। एंड इफ ऑल 3 थिंग्स आर फेवरेबल, दैट फुल टर्म बेबी है, ब्रीथ कर रहा है और मसल टोन अच्छी है, तो वी हैव टू प्रोवाइड ओनली रूटीन केयर, एंड इन रूटीन केयर बेबी विल स्टे विद द मदर। प्रीवियसली जो है ये पॉइंट नहीं था, अब चीजें आ गई है कि मदर के साथ बेबी रुकेगा, दैट इज ऑन मदर्स लैप। पिछली बार भी हमने बात करी थी कि मदर्स लैप पे, मदर्स एब्डोमेन पे हम डाल देंगे, एंड देयर वी विल प्रोवाइड वार्मथ एज वेल एज मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर। मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर जो है 2015 वाली जो गाइडलाइंस हैं इसमें आया है, पहले जो है आता था ओनली प्रोवाइड वार्मथ। नाउ एक लाइन जोड़ दी है कि मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर, कि हमने हाइपरथर्मिया भी नहीं कॉज कर देना उसको कि कहीं ज़्यादा हीट दे दी हमने। देन क्लियर एयरवेज इफ रिक्वायर्ड, एंड ड्राई करना है उसको, मदर के एब्डोमेन पे डाल के उसको ड्राई करना है अगर हमारे को जो है सक्शन नहीं करने की जरूरत है तो। एंड ऑन गोइंग इवेल्युएशन, और ऑन गोइंग इवेल्युएशन बेसिकली जो है हम इसमें क्या करेंगे कि हम उसकी एक्टिविटी देखेंगे, बेबी की कलर और उसका ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ऑन गोइंग इवेल्युएशन होगा। तो इसमें मतलब कोई रिससिटेटिव केयर हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको ओनली रूटीन केयर देनी है। अगर इनमें से किसी का आंसर भी नो था, बेबी वाज प्रीटर्म और बेबी वाज नॉट ब्रीदिंग और बेबी का मसल टोन बहुत अच्छा नहीं है, लिम्प है, तो हमको इनिशियल स्टेप तो वही करने हैं कि बाम्थ देनी है। अब यहाँ बाम्थ कहाँ देनी है? रेडिएंट वार्मर के नीचे। यहाँ पे बेबी रह रहा था मदर के साथ, और जब इनमें से कोई रिस्क फैक्टर है हमारे पास, किसी का आंसर नो है, देन वी हैव टू टेक द बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर, और टेम्परेचर मेंटेन करना है नॉर्मल टेम्परेचर। वी हैव टू पोजीशन, हमने पिछली बार बात कर ली, स्निफिंग पोजीशन में रखना है उसको, और क्लियर एयरवेज, एयरवेज सक्शन करना है अपने को, ड्राई करना है एयरवेज सक्शन करने के बाद,
और ट्राई करने के बाद भी अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है, देन वी हैव टू स्टिमुलेशन बाय रबिंग बैक और फ्लिकिंग द सोल। देन स्टिमुलेशन के लिए अगर हमने उसको टेढ़ा आड़ा लिटाया है तो हमने रिपोजिशन करना है। तो दिस शुड बी कंप्लीटेड विद इन फर्स्ट 30 सेकंड। तो ये जो फर्स्ट साइकिल है, इट शुड बी विद इन 30 सेकंड की हमने पहले 30 सेकंड में चीजें सारी कर ली। देन सेकंड साइकिल में क्या होगा कि देन हमने एक्शन ले लिया, एक्शन लेने के बाद क्या उसका रिजल्ट आया, देन वी हैव टू रीअसेस इट। तो रीअसेसमेंट में हमने फिर से जो है असेस करना है। अब 2 ही पैरामीटर पे असेस कर रहे हैं, इधर रेस्पिरेशन की ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और हार्ट रेट। अब सेकंड साइकिल में हार्ट रेट जो बार बार बोल रहे हैं कि सेकंड साइकिल में हार्ट रेट देखी जाती है, इनिशियली नहीं देखी जाती। पेपर में बच्चे लिखते हैं तो हार्ट रेट जो है फर्स्ट में ही लिख लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो सेकेंड साइकिल में हमने उसको असेस किया कि एपनिया में या गास्पिंग कर रहा है बेबी, या हार्ट रेट उसकी 100 से नीचे तो नहीं है। दोनों का आंसर नो है कि बेबी इज नॉट गास्पिंग बट ब्रीदिंग नॉर्मली, और हार्ट रेट इज मोर देन 100। देन इज बेबी हैविंग लेबर्ड ब्रीदिंग और हैविंग परसिस्टेंट साइनोसिस, इसका भी आंसर नो है। तो रूटीन केयर में हमने बैक टू रूटीन केयर चले गए ऊपर कि आपने स्टिमुलेट किया, बेबी ब्रीथ करने लग गया, हार्ट रेट 100 से ऊपर है, देन एंड साइनोसिस नहीं है या लेबर्ड ब्रीदिंग नहीं है, तो रूटीन केयर। बट इफ देर इज लेबर्ड ब्रीदिंग और साइनोसिस है बट बेबी ब्रीथ कर रहा है एंड हार्ट रेट इज मोर देन 100, देन वी हैव टू पोजिशन एंड क्लियर एयरवेज, जैसे कि ऊपर भी हम कर रहे थे। एंड मॉनिटरिंग करनी है, SpO2 की मॉनिटरिंग करनी है। SpO2 की बात हम लास्ट में करेंगे कि कितना SpO2 हमको डिजायर्ड रहता है। देन सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि हमने उसको ऑक्सीजन जो है बाय हुड मेथड यूजली जो है देते हैं। तो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन एज नीडेड हमने प्रोवाइड करनी है, और अगर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन से भी काम नहीं चल रहा है देन वी कैन कंसिडर फॉर CPAP, और CPAP के बाद जो है बेबी स्टेबल है तो वी यूजली डू द पोस्ट रिससिटेटिव केयर एंड टीम ब्रीफिंग की जो जो भी हमने किया वो टीम को ब्रीफ करेंगे। एंड if the answer is not no, if answer is yes कि बेबी इज हैपनिंग और बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा है या गास्प भी कर रहा है या हार्ट रेट लेस देन 100 है, देन वी हैव टू स्टार्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद बैग एंड मास्क हम स्टार्ट करेंगे, साथ में मॉनिटर करेंगे SpO2, जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी SpO2 मॉनिटर करेंगे। और यहाँ पे हम कंसिडर, दिस इज न्यू पॉइंट, कंसिडर ECG मॉनिटरिंग। तो 3 लीड ECG से हम मॉनिटरिंग शुरू कर सकते हैं अगर जरूरत है हमको यहाँ पे। तो अगर हमारे पास अवेलेबल है फैसिलिटी तो हम ECG मॉनिटरिंग भी यहाँ पे शुरू कर देंगे 3 लीड ECG से। देन ये सारी चीजें हमारे पास अगले 30 सेकंड मतलब सेकंड 30 सेकेंड्स में हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट मिनट में हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू कर दिया, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम 15 सेकंड के लिए देके रीवैल्यूएट करते हैं कि हाँ जो है सही चल रहा है, या ब्रीथ शुरू कर दिया उसने कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो हम रीअसेस करते हैं कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट साइकिल में हम देखेंगे। तो इसमें जो हमने further evaluate करना है, either baby have started breathing or if baby have not started breathing, then what is the heart rate is still less than 100, then we have to further चेक करना है कि हमने जो काम किया वो सही किया कि नहीं किया। if heart rate is more than 100, heart rate is not less than 100 and heart rate it means heart rate is more than 100 and baby is breathing, then post resuscitative care जो हमको करनी है। बट अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है तो हमको आगे चलना है कि मतलब एक साइकिल हमने पॉजिटिव वेंटिलेशन दे दिया बट स्टिल बेबी हैव नॉट रिवाइव्ड, बेबी का हार्ट रेट भी नीचे है। तो वही चीज हम आगे लेके आ रहे हैं कि हार्ट रेट हमारा 100 से नीचे है तो हमने क्या करना है, वी हैव टू चेक फॉर चेस्ट मूवमेंट। जो हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करा रहे हैं उस टाइम हमने चेस्ट मूवमेंट देखनी है कि चेस्ट मूवमेंट हो भी रही है क्या, चेस्ट राइज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम जो है वेंटिलेशन करेक्टिंग स्टेप्स, जिनकी हम लास्ट में बात करेंगे, मिस्टर सोपा की। तो एक नई टर्म आई है इसमें मिस्टर सोपा करके, वो हम लास्ट में बात करेंगे उसको। तो वेंटिलेशन करेक्टिंग स्टेप्स हमने करने हैं, और अगर जरूरत लगती है हमको तो ETT जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसका इंसर्शन इंटूबेशन हमने करना है, या फिर लेरिंजियल मास्क अगर है तो उसको हम जो है लेरिंजियल मास्क ईयर में हम डाल के तब हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करें। तो सेकंड थर्ड स्टेप में हमारे पास जो है
ये चीज़ें इवेल्युएट करके, हार्ट रेट इवेल्युएट करके पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कंटिन्यू करना, और साथ में देखना है हम कि क्या सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हार्ट रेट कम है 100 से, अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, देन ओनली पोस्ट रिससिटेटिव केयर, बेबी ब्रीथ कर रहा है। देन नेक्स्ट साइकिल अगेन हमको इवेलुएट करना है अब हार्ट रेट, कि हार्ट रेट अगर हम अच्छे से वेंटिलेट करा रहे हैं तो हार्ट रेट में भी मोर देन 100 हो गया है, तो वी विल फर्दर मूव कि बैक चलेगा, यहाँ से ऊपर जो है हम दोबारा उसमें ही चले जाएंगे कि heart rate is more than 100, baby is not breathing, then positive pressure ventilation will continue. If heart rate is less than 100, then we have to check chest movement वाला step करना है, और heart rate more than 100 baby is breathing, then we require only post resuscitative care. तीसरी कंडीशन आती है इस साइकिल में कि हार्ट रेट इज लेस देन 60। पहले हार्ट रेट फॉल कर रहा था कि पहले 90 था, 80 था, तब हम सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे थे, बट हार्ट रेट अगर लेस देन 60 हो गया तो हमको क्या करना है, इंटूबेट करना है। इंटूबेट करना मतलब ईटी ट्यूब इंसर्ट करनी है। तो ईटी ट्यूब इंसर्ट करनी है अगर हमने पहले नहीं डाली है, क्योंकि यहाँ पे भी ईटी ट्यूब इंसर्शन का एक पॉइंट है। अगर हमने ईटी ट्यूब नहीं डाली है तो ईटी ट्यूब डालनी है, एंड ईटी ट्यूब डाल के जो हमने बैग एंड ट्यूब वेंटिलेशन करना है, एंड दिस बैग एंड ट्यूब वेंटिलेशन शुड बी कोऑर्डिनेटेड विद चेस्ट कंप्रेशन। तो इसमें अगर हार्ट रेट फॉल करता है लेस देन 60, देन वी हैव टू स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है उसमें हम ऑक्सीजन 100% डाल देंगे। अब 100% ऑक्सीजन के साथ हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे। ईसीजी मॉनिटरिंग अब मस्ट हो गया, एंड कंसीडर यूबीसी जो है हमको अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन हमको करना है, क्योंकि हो सकता है कि हमको आगे मेडिकेशन देनी पड़े अम्बिलिकल वेन कैथेटर के थ्रू। और अगर हार्ट रेट फॉल नहीं किया है जो हम वेंटिलेशन कर रहे हो, हार्ट रेट इज स्टिल लेस देन 100 बट नॉट लेस देन 60, तो वही स्टेप हमको जो है कंटिन्यू करना है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का। वी हैव नॉट टू स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन विल ओनली बी स्टार्टेड व्हेन हार्ट रेट फॉल्स बिलो 60 टू सपोर्ट सर्कुलेशन। देन फोर्थ कंडीशन जो है, फोर्थ फिफ्थ साइकिल में क्या आएगा कि अगर हार्ट रेट हमारे पास 60 से नीचे है और हमने एक बार जो है चेस्ट कंप्रेशन कर लिया, हार्ट रेट इज स्टिल लेस देन 60, वी हैव done chest compression with coordinated positive pressure ventilation with 100% oxygen for 30 seconds, and then we have re-evaluated, and in re-evaluation we found that heart rate is still less than 60, then we will give एपिनेफ्रिन, एंड एपिनेफ्रिन के साथ जो हम स्टेप कर रहे हैं चेस्ट कंप्रेशन और पॉजिटिव वेंटिलेशन वो कंटिन्यू रहेगा। तो आईवी एपिनेफ्रिन इफ हार्ट रेट परसिस्टेंटली बिलो 60 मिनट जो है होगा तो आइविनेफ्रिन देना। और अगर हार्ट रेट आईवी एपिनेफ्रिन जो हमने डोज कंसिडर की थी लास्ट टाइम के 0.1 to 0.3 ml पर केजी ऑफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन देते हैं, और उसको देने के बाद चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद भी अगर हमारा जो है बेबी का हार्ट रेट बढ़ नहीं रहा है, तो वी शुड कंसिडर आइदर देयर इज हाइपोवॉल्मिया और देयर इज निमोथेरेक्स। तो उससे रिलेटेड जो हम उसको कंसीडर करेंगे और उससे करेक्टिव स्टेप्स हमने करने हैं। जो हाइपोवॉल्मिया में हमने बोला था कि नॉर्मल सलाइन लगाना 10 ml पर केजी स्लो जो है देना है 10 to 15 मिनट्स में, तो वो जो हम यहाँ पे करेंगे। तो दिस इज रिससिटेशन एल्गोरिदम। इसमें हमने जो 4 स्टेप्स देखे कि हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने टेम्परेचर मेंटेन किया, एयरवेज क्लीन की, और कोशिश की अगर बेबी ब्रीथ नहीं किया तो स्टिमुलेशन से हम ब्रीथ करा रहे हैं। सेकंड स्टेप में हमने किया कि अगर बेबी स्टिल इज नॉट ब्रीदिंग, देन वी हैव स्टार्टेड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन तब तक देते रहेंगे जब तक आइदर बेबी हैव नॉट स्टार्टेड ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट हैव नॉट इंक्रीज मोर देन 100। और थर्ड स्टेप है अगर बेबी रिवाइव नहीं हो रहा है तो वी हैव टू सी फॉर द एडिक्वेसी ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, चेस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, वेंटिलेटरी करेक्टिव स्टेप्स हमने करने हैं। और फोर्थ साइकिल में अगर हमको लगता है कि हम सही से वेंटिलेशन कर रहे हैं, स्टिल बेबी रिवाइव नहीं हो रहा, हार्ट रेट फॉल कर रहा है एंड हार्ट रेट लेस देन 60, देन we have to do chest compression with in addition to positive pressure ventilation with 100% oxygen, and then
In fifth step, if heart rate still not improving with chest compression, then we have to give IV epinephrine or epinephrine जो है हम we can repeat 3 to in every 3 to 5 minutes. So this is resuscitation pyramid जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो दिस नॉर्मल सी मे बी नीडेड इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी कि बेबी को असेस किया हमने बर्थ के बाद एंड बाम्स प्रोवाइड की एयरवेज क्लियर किया और स्टिमुलेट किया तो ये यूजुअली जो है मे बी नीडेड इन 10% ऑफ द डिलीवरीज स्टिमुलेशन तक अदरवाइज हमको बहुत कम इसकी रिक्वायरमेंट होगी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन तब दिया हमने जब हमको लगा कि साइनोइड परसिस्टेंट साइनोसिस है बेबी इज हैविंग लेबर्ड ब्रीदिंग एंड थर्ड स्टेप जो है अगर बेबी ब्रीथ ही नहीं कर रहा है स्टिमुलेशन के बाद भी देन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड इट इज रिक्वायर्ड लेस फ्रिक्वेंटली देन उसके बाद हमने चेस्ट कंप्रेशन से जस्ट पहले इंटूबेट किया बैगन ट्यूब वेंटिलेशन शुरू किया एंड देन अगर हार्ट रेट फॉल कर रहा है तो हमने चेस्ट कंप्रेशन किया एंड इट इज रेयरली नीडेड देन मेडिकेशन अगर चेस्ट कंप्रेशन से भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मेडिकेशन हमने करा है तो रिससिटेशन पिरामिड है कि जिस चीज़ की जितना बड़ा एरिया है उतनी रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा है जितना छोटा एरिया जो है इसमें इन्वॉल्व है उतनी उसकी रिक्वायरमेंट कम है हाँ, तो इसकी हम बात कर रहे थे कि SpO2 की हम बाद में बात करेंगे कि SpO2 कितना रिक्वायर्ड है तो इस टेबल को याद रखना पड़ेगा कि 1 मिनट का अगर बेबी है विद इन फर्स्ट मिनट जो हमको 60 to 65 टारगेट करनी है कि उतनी आनी चाहिए हमारी पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द न्यू बॉर्न देन 10 मिनट्स में हमको जो 85 to 95 तक पहुंचना है एवरी 1 मिनट में जो हम 5-5 इंक्रीज कर रहे हैं और 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बीच में जो फिर 10 का इंक्रीज है देन व्हाट आर द लेटेस्ट चेंजेस तो आप लोग पुराना तो जानते ही नहीं है तो लेटेस्ट चेंजेस का तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है फिर भी आप बुक्स में जो पढ़ोगे उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो लेटेस्ट 2015 में जो हर 5 साल में रिससिटेशन गाइडलाइंस को मॉडिफाई किया जाता है तो 2015 की जो गाइडलाइंस हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं तो एक तो मिस्टर सोपा आया है जो वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स हैं उसमें आया है तो मिस्टर सोपा क्या है एम फॉर मास्क की रीअप्लाई मास्क और लुक फॉर अगर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम वेंटिलेटरी करेक्टिव मेजर्स की हमने बात करी थी तो उनमें ये मिस्टर सोपा है तो उसमें क्या देखेंगे कि मास्क को अप्लाई हमने सही से किया मास्क लीक तो नहीं हो रहा है जो ई और सी हमने बात करी थी मास्क एप्लीकेशन में सील की तो वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है सेकेंड इज आर इज रीपोजिशन कि हमने पोजीशन सही से नहीं किया तो एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है स्निफिंग पोजीशन नहीं है एस सिक्रेशंस हैं एयरवेज में तो सक्शन करना है हमको तो एस से सक्शन है ओ से ओपन माउथ में हमको ब्रीथ कराना है तो स्लाइटली ओपन माउथ एंड जॉ को एलिवेट करके जो ई से हम जो जॉ को आगे खींच रहे थे एलिवेट कर रहे थे तो वो जो है ओ से इंडिकेट किया है कि ओपन माउथ में करना है हमको पी से प्रेशर अगर चेस्ट राइज फिर भी नहीं हो रहा है इन स्टेप्स से भी चेस्ट राइज नहीं हो रहा तो प्रेशर इंक्रीज करना है अपने को कि हमने जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं बैग पे वो कम कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज करना है वेंटिलेशन का और लास्ट है ए ए फॉर अल्टरनेटिव एयरबेस या अल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं जैसे इंटूबेट करना है या लेंजियल मास्क डालना है तो ए से कंसिडर किया अल्टरनेट एयरवेज या अल्टरनेट मेथड्स तो ये मिस्टर सोपा याद रखना है फॉर वेंटिलेशन करेक्टिव मेजर्स देन जो चेंजेस हुए हैं इंटूबेशन मस्ट कर दिया है चेस्ट कंप्रेशन से पहले इंटूबेट करना ही करना है पहले मस्ट नहीं था देन रिंगर लैक्टेट अब नो मोर इज रिकमेंडेड फॉर वॉल्यूम एक्सपेंडर जो हम बोल रहे थे कि नॉर्मल स्लाइन या रिंगर लैक्टेट हम लगा सकते हैं नाउ इट इज ओनली रिंगर लैक्टेट देन रूटीन यूज ऑफ सोडा बाइकार्ब हमने पिछली बार भी बात करी कि आपके पास एबीजी नहीं है तो वी शुड नॉट यूज सोडा बाइकार्ब तो रूटीन यूज उसका हटा दिया है देन नैलॉक्सोन तो पिछली उसमें भी हमने हटा ही दिया था 2010 में ही हट गया था नैलॉक्सोन इज नॉट रिकमेंडेड इन रेस्पिरेटरी डिप्रेस्ड न्यूबॉर्न्स देन लास्ट कंडीशन इज नाउ वो MSL जो मेकोनियम स्टैंड लिकर वाले बच्चे हैं बेबीज बॉर्न थ्रू मेकोनियम स्टैंड लिकर के साथ जो पैदा हुए हैं
उनमें प्रीवियसली इट वाज एडवाइज दैट वी शुड डू इंटूबेशन एंड देन डू ट्रैकियल सक्शन, कि हम उनको इंटूबेट करें। जैसे ही अगर बच्चा पैदा हुआ है और नॉन विग्रस है, बच्चा रो नहीं रहा है, एक्टिव नहीं है, बिल्कुल जो है लिम्प है, तो उसमें हम ईटी ट्यूब डाल के सक्शन करते थे। नाउ इट इज नो मोर रिकमेंडेड। अगर ऐसा नॉन विग्रस चाइल्ड मिल भी रहा है, मेकोनियम स्टैनली करके थ्रू आया है, उसमें हमको जो है एयरवेज क्लीन करके हमको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन डायरेक्टली स्टार्ट करना है। देयर इज नो नीड टू डू ट्रैकियल सक्शन। तो दीज आर अ फ्यू चेंजेस व्हिच हैव बीन रिकमेंडेड इन 2015 गाइडलाइंस। कब तक करना है रिससिटेशन? तो यूजली द गाइडलाइन इज दैट जीरो अपगार स्कोर एट 10 मिनट्स इन लेट प्री टर्म्स एंड टर्म न्यूनेट्स में। अगर जीरो आ रहा है 10 मिनट का अपगार स्कोर भी, या देर इज नो हार्ट बीट एट 10 मिनट्स, देन वी शुड स्टॉप रिससिटेशन। और किस में नहीं करना चाहिए? व्हेन देर इज कंडीशंस एसोसिएटेड विद हाई मॉर्टेलिटी और हाई मॉर्बिडिटी। तो उनमें जैसे कि अगर जेस्टेशनल एज लेस देन 23 वीक्स है, तो उसने ऐसे ही जिंदा नहीं रहना, या बर्थ वेट 400 ग्राम से नीचे है, या बहुत सीवियर कोई कंजेनाइटल एनोमली है जो जिसका हमको पता है कि इसके साथ जो है मॉर्बिडिटी हाई है, या फिर अर्ली डेथ हो जाती है इस पर्टिकुलर कंजेनाइटल एनोमली में, तो ऐसे बच्चों में रिससिटेशन करने की जरूरत नहीं रहती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूनेटल रिससिटेशन। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमने कंसिडर कर लिया है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स फिर भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मॉडर्न के हिसाब से हमने 2 लेक्चर में ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करी है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है आयुर्वेद की बात करेंगे और देन रूटीन केयर की बात करेंगे। तो तब तक इन सारे लेक्चर्स को ध्यान से पढ़िए और बुक को भी कंसल्ट करिए, और अगर कोई क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है सजेशंस दीजिए या क्वेरीज आप दीजिए। ओके, थैंक यू।